हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19 सोशल साइंस का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जो हम यहाँ पर करेंगे गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल, यानी राज्य स्तर पर शासन किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, 10th किसी भी क्लास के बच्चे हों, इवन कि जो सीबीएसई एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम स्टेट लेवल के अंतर्गत जो है गवर्नेंस के बारे में विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discuss the most important chapter here, governance at the state level. There is a most important chapter here, but first topic arrive here, governor. The governor is the most important post here. You will study in their lessons on constitution value and Indian political system that India has a parliamentary from a government. Both at state and union levels, it has an institution and process in place like any other parliamentary system. At the state level, there is a governor is whom the executive power of the state is vested by the constitution. But the governor acts as a nominal head, and the real executive power are exercised by the council of ministers headed by the chief minister. On your screen, there is a most important Gujarat Rajya Bhavan. There is Allahabad Rajya Bhavan. That is important on your screen. The next year, appointment. The governor of the state appointed by the President of India. There is a most important point here. The governors of state is appointed by the President of India. In order to become a governor, a person must have the following qualification he see. There is important. Must be a citizen of India, must be at least 35 years old, and should be not hold any office and profit during his or her tenure. This is important here. If a person, a member of either House of Parliament of legislatures of a state or a member of councils of ministers at the national or the state level, and the appointment as a governor, he she is resign that post. The governor is appointed for the terms of 5 years, but normally hold office during the pleasure of the president. The pleasure of the president means that the governors may be removed by the president even before the expire of his or her term, and he may be also resign earlier. However, in the earlier will their appointings as removing the governors, the president goes by the advice of prime minister. And the next year, power of governor. With every job here are a power attached. The power of governor are conferred by the constitution to enable him her to be perform his her is a functioning effective as the head of the state. The power of governor can be characterized by as the executive power, legislative powers, financial power, and judicial power, and discretionary power. There is a most important power here. Let's see there is a detail on this power here. The first power here is executive power. The Constitution of India is a base. There is entire executive powers of the state in a governor who perform this function according to the act
and the advice of Council of Ministers, with the Chief Minister as its head, and he is appointed the Chief Minister and other member of the Council of Ministers. And she also is appointed persons on the important posts such as the chairpersons and member of the State Public Service Commission, and a State Election Commission also, and a State Finance Commission, and the Advocate General, judge of the court of then the High Court, and he is there consulated with their judge of the State High Court and appointed by the President. But in the practice, the governors, the power are only a formal. He is appointed only that person as a chief minister who is the leader of the majority in the legislative assembly, and he appoint member of the council of the minister only on the advice of chief minister. All other appointments are made and executive function are performed by him her exclusively per the advice of councillors of minister. The next here, legislative power here. The governor is the inseparable part of the state legislatures, and such as he sees has been to give in contain a legislative power. He has the right to be a summon and progress their state legislatures and can be dissolved the state legislative assembly. She addressed the state legislative assembly or joint a session of the two houses of legislature. She is maybe a nominates one person of the Anglo-Indian community as a member of legislative assembly in case of community is not represented. This is the most important. There is a appointment of Anglo-Indian community here. She also is a nominate 1/6 of the member to be legislative councillor of the state has bicameral legislature. And once again, in the real practice, their governor does all this one of the recommendations of the Council of Ministers and headed by the Chief Minister. A bill passed by their state legislature become a law or act only then their governors give assist to it. So there's an important legislative powers here. And the next here, financial power. You must have read in the newspaper that every year their budget is represented by the government in the legislative for its approval. In fact, the budget, the annual financial statement of the state is prepared and represented by the state finance minister before the state legislatives on behalf of the governor. Moreover, no money will can be introduced in the state legislative without their recommendation of governor, and she also has a control over the state contingency fund here. That's important. And next power here, the discretionary powers here, as we have seen earlier, the governor act on the advice of the state council of minister. This means that a relative of governor has no power, but according to the constitution under a special circumstance, she may be act without the advice of the council of minister. Such powers which are exercised by the governor on his own are called discretionary power. Firstly, if no political party or coalitions of parties win a clear majority in the legislative assembly, she can exercise his or her discretions in inviting a person to be a chief minister. And secondly, the governor act as a link between the center and state here. She can dissolve any bill passed by the state legislatures for the consideration of President of India. And thirdly, if she is a think that the government of state is not functioning according to the constitution, she can report to be president. In that case, under Article 356, the president as a rules is imposed. The state council of ministers is removed and the state legislatures is dissolved or put under suspension. During such an emergency, the governors rules on behalf of the president. The next year, relationship between the governor and the council of ministers. That's the most important relation here. As we have seen above, the state executive consists of governor, the chief minister, and the council of ministers. Normally, the governor exercises all his her powers on the advice of the council of ministers.
We know that when the chief minister is sworn in, the governor simply perform a formal duty. He should invite the leader of the majority in the state legislative assembly to be sworn in all the chief minister. The members of Council of Ministers are also appointed by their governor on the recommendation of chief minister. The majority can consist of members of legislative assembly belonging to be one party or the group of parties and independent. However, then there is no clear majority in the House of elected one candidate as its leader. The governor can exercise his or her discretionary power he use here. And similarly, the authorities theoretically a minister hold their office during the pleasure of the governor. As a practice, their chief minister and the council of ministers remain in office till they enjoy the support of the majority in the legislative assembly. The governor can dismiss them only when their president as a rule in the imposed. The chief minister is required to be communicate to the governor all the decision of the council of ministers. She may be called for necessary information related to their state administration. If a minister individually take a decision, the governors may be asked the chief minister to place such as a matter for the considerations of the council of minister. It is true that the governor is a nominal head and the real power are exercised by the council of minister headed by the chief minister, but it will be not to be correct to say that a governor is just a constitutional and criminal's head. Criminal's head, and she can exercise her power effectively under the content of circumstances, especially when there is a political instability in the state. Since she is a link between to the center and the state, she become very effective. And if the central government send the direction to the state government, the discretionary power also make the governor to be act as a real executive in a particular circumstance. That's the most important power and function of your governors. यहाँ जो हमारे समक्ष महत्वपूर्ण चैप्टर आया है राज्य स्तर पर शासन, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पर आया है वो है राज्यपाल। देखिए राज्यपाल हम जो आज करने जा रहे हैं राज्य स्तर पर शासन के अंतर्गत राज्यपाल का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। ये पद बहुत ही महत्व इसलिए भी रखता है क्योंकि ये स्टेट लेवल पे होता है। आप सर्वसाधारण मूल्य और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नामक अध्याय में पढ़ चुके होंगे कि इस भारत में शासन के संसदीय रूप है और राज्य तथा संघीय दोनों ही स्तर पर जो है अन्य संसदीय व्यवस्थाओं की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है और सभी की अपनी अपनी जो है कार्य प्रणाली होती है, संस्थाएं होती हैं और प्रक्रिया होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। राज्य स्तर पर एक राज्यपाल होता है या राज्य स्तर पर एक राज्यपाल की जो है प्रावधान किया गया है जिसमें संविधान द्वारा राज्य के सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित की गई है, परंतु राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ जो है प्रयोग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद करता है। तो आप ये बात को जो है केंद्र स्तर पर भी ले सकते हो कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के बाद सारी शक्तियाँ निहित होती है। तो यहाँ पर जो है गवर्नर भी यानी राज्यपाल भी जो है नाम मात्र का होता है, सारे पावर जो होते हैं मुख्यमंत्री के पास होता है और उसके मंत्री परिषद के पास होता है। तो ये सेंट्रल लेवल पे भी देखा जाए तो स्टेट लेवल पे देखा जाए तो दोनों जगह जो है प्रावधान एक जैसा ही किया गया है। यहाँ जो आपके समक्ष चित्र प्रस्तुत हुआ है ये है गुजरात राजभवन का चित्र है जो काफ़ी मनोहरक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप देख सकते हो कि ये इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नियुक्तियाँ। देखिए राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यता होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वो भारत का नागरिक हो, ये प्रथम है, उसके न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो चुका हो और वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है राज्यपाल नियुक्त की जाती है और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति का वही प्रावधान है जो राज्यपाल का
है और दोनों की नियुक्ति एक दूसरे जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करती है, तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करती है और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति करता है। तो कहते हैं, मैंने अभी बताया भी था कि नेशनल लेवल, अगर हम स्टेट लेवल पे देखा जाए या सेंट्रल लेवल पे देखें, तो जो कार्य राष्ट्रपति का सेंट्रल लेवल पे है वही कार्य राज्यपाल का जो है स्टेट लेवल पे है। तो दोनों के याद करना इतनी कठिन कार्य नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का अथवा राज्य विधायक का अथवा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किसी भी मंत्रिपरिषद का सदस्य है और वह राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तो वह अपने उस पद से त्यागपत्र देता है। राज्यपाल 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु सामान्यतः वह राष्ट्रपति के जो है पदासीन अपने पद पर बना, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक जो है अपने पद पे वो आसीन रहेगा। जब चाहे राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। तो ये प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व का तात्पर्य यही होता है कि राज्यपाल अपनी पदावधि के पूर्ण होने से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यानी राज्यपाल के पद पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी सब जो है राष्ट्रपति के ऊपर ही निर्भर होता है। वो अपनी पदावधि से पूर्व त्यागपत्र भी दे सकता है, ये भी प्रावधान किया है। राज्यपाल अपने चाहे तो पद पर बना रह सकता है या जब चाहे वो पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। यद्यपि वास्तविक रूप में राज्यपाल नियुक्त करने तथा उसे पद से हटाए जाने के निर्णय राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही लेता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से जो है राज्यपाल को नियुक्ति भी कर सकता है और हटा भी सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है राज्यपाल की शक्तियाँ। देखिए, राज्यपाल की शक्तियाँ हम अब जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन देख लेते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। प्रत्येक पद के साथ कुछ शक्तियां जुड़ी होती है। राज्य के प्रमुख रूप में प्रभावी तरीके से वो अपना कार्य करने के लिए संविधान द्वारा राज्यपाल की शक्ति प्रदान की गई है। अगर देखा जाए तो राज्यपाल की शक्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, चाहे वो कार्यकारी शक्तियां हो, विधायिक शक्तियां हो, वित्तीय शक्तियां हो, न्यायिक शक्तियां हो या विवेकाधीन शक्तियां हो। तो ये सारे शक्तियां जो है 5 शक्तियां राज्यपाल को दी गई है। अब इस शक्तियों में क्या विशेषता है और क्या खासियत और क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए हम इसको विस्तार पूर्वक जानें और समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले तो हमारे समक्ष आता है कार्यकारी शक्तियाँ। कहते हैं भारतीय संविधान द्वारा राज्य के संपूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में ही निहित की गई है, जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार ही करता है। वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है और वह अन्य महत्वपूर्ण पद जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, एडवोकेट यानी जर्नल तथा अन्य न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। जब राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल की सलाह भी ली जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंतु वास्तव में राज्यपाल की शक्तियाँ मात्र औपचारिक ही है। जैसे राष्ट्रपति की शक्ति मात्र औपचारिक है, यहाँ राज्यपाल की शक्ति भी औपचारिक मात्र है। वह जो है मुख्यमंत्री के रूप में केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाला नेता हो, और वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह से ही कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति जो है कैबिनेट मिनिस्टर का जो है नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के सलाह से, वैसा ही प्रावधान यहाँ पर भी है। उसके द्वारा अन्य सभी नियुक्तियां तथा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी यहाँ कार्यकारी शक्तियाँ। अब देखते हैं अगली शक्ति। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विधायक शक्तियाँ। देखिए, विधायक शक्तियाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। राज्यपाल राज्य विधायक का अभिन्न अंग होता है और वो उसे कुछ निश्चित जो है विधियाँ शक्तियाँ दी गई, विधायक शक्तियाँ भी दी गई है। उसे राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने तथा उसका जो है अवसान करने के अधिकार है, और वह राज्य जो है विधानसभा को भंग भी कर सकता है। वह राज्य विधानसभा अथवा विधायकों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में अभिभाषण भी देता है। यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उसे समुदाय के एक सदस्य को नामांकित भी करता है। यदि राज्य में द्विसदनीय विधायिका है तो विधान परिषद के 1/16 सदस्यों के नामांकन राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है।
आपको पुण्य स्मरण कर दें कि वास्तविकता में राज्यपाल ये सभी कार्य जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर ही करता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का ही होता है, सारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री के अंदर निहित होती है और मुख्यमंत्री की भी शक्तियाँ होती हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होता है। राज्य विधायक के पास किया गया कोई भी विधायक तभी कानून या अधिनियम का रूप लेता है जब राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी कार्य करे उसको राष्ट्रपति से जो है साइन करवाने की आवश्यकता होती है। तो यही प्रावधान यहाँ पर जो है राज्य स्तर पर भी इसी तरह के प्रावधान रखे गए हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वित्तीय शक्तियाँ। देखिए, आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा बजट विधायिका की पटल पर उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में राज्य की बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल की तरह से राज्य के वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य विधायक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और इसके अतिरिक्त कोई भी वित्तीय विधायक राज्यपाल की जो है संतृप्ति के बिना राज्य विधायक में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और राज्यपाल का राज्य आकस्मिक निधि पर पुण्य नियंत्रण होता है। तो ये सारे चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम देखें न्यायिक शक्तियाँ तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा भी कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति कोई भी जो व्यक्ति जो है मृत्यु दंड प्राप्त कर चुका हो, राष्ट्रपति जो है उसको क्षमादान दे सकता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर राज्यपाल भी राज्य के अंदर कोई भी दंडित व्यक्ति को है क्षमादान देने का प्रावधान किया गया है। वह किसी भी दंड को स्थगित कर सकता है या कम कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति भी करने का प्रावधान है। परंतु सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों को प्रावधान में राज्यपाल के क्षमादान का अधिकार नहीं है, लेकिन जो सैनिक न्यायालय द्वारा दी गई होती है उसको देने का कोई भी यहाँ अधिकार नहीं दिया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विवेकाधीन शक्तियाँ। जैसा कि हम पूर्व पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है और इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता में राज्यपाल की कोई शक्तियां नहीं होती है। वास्तविकता में राज्यपाल के पास कोई शक्तियां नहीं होती है, परंतु संविधान के अनुसार विविध परिस्थितियों में वह मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। यानी वो तब कार्यशील होगा जब कोई परिस्थिति पैदा होगी। ऐसी शक्तियाँ जिनका प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर करता है विवेकाधिकार शक्ति कहलाती, क्योंकि वो अपने विवेक से कार्य करता है, इसलिए इसको हम विवेकाधीन शक्तियाँ कहते हैं। प्रथम, यदि विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दलों के गठन के पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल विवेक जो है का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बनने हेतु निमंत्रण दे सकता है। यानी किसी का भी अगर बहुमत साबित नहीं होता है तो वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए निमंत्रण दे सकता है। और दूसरे, राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। यानी राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी का काम करता है, यानी सारी बात जो है राष्ट्रपति से भी करता है तो कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। ये शक्तियाँ उसकी अपनी विवेकहीन होती है। राज्य विधायक द्वारा पारित किसी भी विधायक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण द्वितीय शक्ति थी। उसके पश्चात है तृतीय शक्ति। यदि राज्यपाल यह मानता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वह राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे सकता है और वैसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और राज्य मंत्रिपरिषद हटा दी जाती है, यानी भंग कर दिया जाता है सभी मंत्रिपरिषदों की। और राज्य विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है या अलंबित कर दी जाती है। ऐसी आपातकाल स्थिति के दौरान राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य में शासन करने लग जाता है। तो ये सारी शक्तियाँ उसके अपनी विवेकहीन होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का संबंध। देखिए, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, ठीक है, और मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। यानी देखा जाए तो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। सामान्यतः राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है और हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते समय राज्यपाल अपने औपचारिक कर्तव्य का पालन करता है और वह मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही आमंत्रित करता है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल मुख्यमंत्री के जो है पुस्तिक के अनुसार ही करता है। यानी मुख्यमंत्री जिसको बनाना चाहे उसको बना सकता है, ये प्रावधान है, वो मंत्रिपरिषद में रख सकता है। विधानसभा में बहुमत
एक दल अथवा दल समूह अथवा निर्दलीय समूहों से मिलकर बनता है, लेकिन जब सदन में एक नेता के चुनाव हेतु स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल अपनी विवेकधीन शक्ति का प्रयोग करता है। और इसी तरह संवैधानिक रूप से सभी जो है मंत्री राज्यपाल के प्राधान्यतः अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। परंतु देखा जाए तो व्यवहारिक रूप में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहने तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल उन्हें तभी जो है बर्खास्त कर सकता है जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, यानी बर्खास्त करने का जो वही प्रावधान है जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की जो है सूचना राज्यपाल को भेजी जाती है और राज्यपाल राज्य शासन के संबंधी किसी भी आवश्यक सूचना की मांग भी कर सकता है। यदि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय लेता है तो राज्यपाल ऐसे मामलों को जो है मंत्रिपरिषद के समक्ष उसके विचार के लिए रखने हेतु मुख्यमंत्री से कह सकता है। और यह सच है कि राज्यपाल नाम मात्र का ही पर मुख्य होता है तथा वास्तविक शक्तियां जो होती है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा ही प्रयोग की जाती है, यानी सारी शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद करती है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यह कहना उचित नहीं है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक और औपचारिक पर मुख्य होता है और वह कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अपनी शक्ति का बड़े प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकता है। और वह जो है विशेष तौर पर ऐसा तब कर सकता है जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो चुकी हो, क्योंकि वह केंद्र तथा राज्य के बीच का कड़ी का कार्य करता है। अंततः उस समय बहुत ही प्रभावी हो जाता है जब केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश भेजता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्ति का भी राज्यपाल को वास्तविक कार्यकारी रूप में कार्य करने का अवसर देता है। तो कहते हैं राज्यपाल की शक्तियां जो यहाँ पर कुछ जो है लिमिटेड है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। सारी शक्तियां मुख्यमंत्री प्रयोग करती है अपनी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। तो राज्यपाल देखा जाए जैसे सेंट्रल के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, उसी तरह राज्य में भी जो है जो देखा जाए राज्यपाल तो ये नाम मात्र का होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर है। अगर आप राज्यपाल की बात अगर समझ लेते हो तो आप राष्ट्रपति की भी सारी कार्यशक्ति समझ लोगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो है हमने बात किया, चर्चा किया, जो हर एक बात पर प्रकाश डालने की कोशिश किया। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जितना हो सके इसको फैलाइए दूसरे बच्चों तक, जो दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा। और आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। इसको सोचिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल पे जो दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको यूट्यूब पे, तो वहाँ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।